آداب عرض ہے ناظرین، میں آصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں روبی اردو نیوز۔ سب سے پہلے نظر ڈالیں گے اہم خبروں پر۔ ریاستی صدر بی جے پی 16 جنوری سے ریاست کے مختلف اضلاع میں کریں گے بس یاترا، 90 نشستوں پر بی جے پی کی کامیابی ہوگی، بی جے پی رکن پارلیمان نے کیا دعویٰ۔ ہندو دیوی دیوتاؤں کے خلاف نازیبہ ریمارک کرنے والے دلت لیڈر کے خلاف کئی مقامات پر احتجاج، پی ڈی ایکٹ عائد کرنے کا کیا گیا مطالبہ۔ 25ویں کل ہند کتاب میلے کا وانمباڑی تمل ناڈو میں 3 تا 11 جنوری ہوگا انعقاد، اردو دوست عوام اور طلباء و طالبات سے شرکت کی اپیل۔ دونوں شہروں کے کئی پولیس اسٹیشنز کو مطلوب 2 رہزن زیر حراست، کئی کیسز درج ہونے کا انکشاف، 21 موبائل فونز کیے گئے برآمد۔ دیکھتے ہیں خبروں کی تفصیل۔ وزیر تلنگانہ کے چندر شیکھر راؤ سے ایس وینو گوپال چاری سینئر ٹی آر ایس قائد نے پرگتی بھون پہنچ کر ملاقات کی۔ واضح ہے کہ ایس وینو گوپال چاری، جنہیں سمودرالا وینو گوپال چاری بھی کہا جاتا ہے، انہیں وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے اسٹیٹ اریگیشن ڈیولپمنٹ کارپوریشن کا چیئرمین نامزد کیا ہے۔ اس موقع پر چیئرمین ایس وینو گوپالاچاری نے اپنی نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سے اظہار تشکر بھی کیا۔ قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان نئی دہلی کی جانب سے ملک کے مختلف ریاستوں میں کل ہند اردو کتاب میلوں کا انعقاد عمل میں لایا جاتا ہے۔ اس سلسلے کے تحت وانمباڑی مسلم ایجوکیشنل سوسائٹی کے اشتراک سے 25واں قومی اردو کتاب میلہ اسلامیہ کالج وانمباڑی تامل ناڈو میں 3 جنوری 2023 تا 11 جنوری منعقد کیا جا رہا ہے۔ قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کی جانب سے اور وانمباڑی مسلم ایجوکیشنل سوسائٹی کے اشتراک سے 25واں قومی اردو کتاب میلے کا اہتمام اسلامیہ کالج وانمباڑی تمل ناڈو میں کیا جا رہا ہے۔ افتتاحی اجلاس 3 جنوری کو 11 بجے دن منعقد ہوگا، جس کی صدارت ڈاکٹر شیخ عقیل احمد، ڈائریکٹر قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان نئی دہلی کریں گے، جبکہ ملک محمد ہاشم، چیئرمین کے ایچ گروپ، اور ڈاکٹر جی وشونادن، بانی و وائس چانسلر وی آئی ٹی یونیورسٹی ویلور، مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کرتے ہوئے خطاب کریں گے۔ اسی طرز پر پروفیسر مظفر علی شاہ میری، سابق وائس چانسلر ڈاکٹر عبدالحق، اردو یونیورسٹی کرنول، و دیگر مقررین مہمانان اعزازی کی حیثیت سے شرکت کریں گے۔ کنوینر پٹیل محمد یوسف اور رکن مینیجنگ کمیٹی سید عبدالباسط شکیل نے اردو دوست عوام، طلباء و طالبات اور نوجوانوں سے شرکت کی اپیل کی ہے۔ واضح ہے کہ ہدا پبلیشرز حیدرآباد سے اس کتاب میلے میں بڑے پیمانے پر شرکت کر رہا ہے، جبکہ ملک بھر میں پبلیشرز بھی اپنے اسٹالز قائم کر رہے ہیں۔ اسلامیہ کالج وانمباڑی کے وسیع و عریض میدان پر مذکورہ کتاب میلہ منعقد کیا جا رہا ہے اور سوسائٹی کی جانب سے اس کے انعقاد کے لیے بھرپور تعاون بھی پیش کیا جا رہا ہے۔ اس 10 روزہ کتاب میلے میں روزانہ مختلف ادبی اور تعلیمی پروگرامز کے علاوہ مدارس کے طلباء کے لیے نشست، علماء کی نشست، بیت بازی، مستورات کے لیے نشست، کل ہند مشاعرہ، سائنسی نمائش و دیگر پروگرامز کا بھی انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے۔ حکومت ہندوستان کی طرف سے مرکزی حکومت نے ایک شعبہ بنایا ہے، نیشنل کونسل فار دی پروموشن آف اردو لینگویج، قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان۔ اس شعبے کی طرف سے سارے ہندوستان بھر میں اردو کو فروغ دینے کے لیے، اس کی ترقی و ترویج کے لیے کام کیا جاتا ہے، اور اس کا ایک اہم کام کتابوں کے میلے لگانا ہے۔ اور اب تک اس شعبے کے ذریعے سے تقریباً 24 مقامات میں سارے ہندوستان کے اندر میلے لگائے گئے، اور 25واں میلہ جب لگانے کا موقع آیا تو قومی کونسل نے وانمباڑی کو منتخب کیا اور اسلامیہ کالج کو منتخب کیا۔ تو یہ کتاب میلہ 25واں انشاءاللہ 3 جنوری سے لے کر 11 جنوری تک ہمارے اس شہر وانمباڑی میں اسلامیہ کالج میں منعقد ہوگا۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے ہمارے شہر کے لیے، ہمارے ادارے کے لیے،
बल्कि इस पूरे उर्दू बोलने वाले इलाके के लिए। तो इसका भरपूर फ़ायदा हमें उठाना चाहिए। इस किताब मेले में हिंदुस्तान भर के मुख्तलिफ़ जो नाशरीन हैं, पब्लिशर्स हैं उर्दू किताबों के, वो आएंगे और वो यहाँ पर अपना स्टॉल लगाएंगे। अब तक तकरीबन 100 के करीब स्टॉल्स बुक हो चुके हैं और लोग यहाँ पर आने वाले हैं। तो अब ये किताबें हमारे घर के दरवाज़े पर पहुँच गई हैं। तो अब ये हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम उन किताबों को ख़रीदें और पढ़ें। और ये किताबें तमाम किस्म की किताबें इसके अंदर होंगी, दीनी किताबें और फिर जो है दरसी किताबें और जैसे और सारी बच्चों के लिए किताबें और मुख्तलिफ़ किताबें, तफरीही किताबें, ये सारी किस्म की किताबें इसके अंदर मौजूद होंगी। तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि जब ये हमारे इस शहर के अंदर हमारे घर के क़रीब ये मेला लगता है तो ये मेले के अंदर हम जाएं और फिर वहाँ किताबों का मुआयना करें और किताबें ख़रीदें। किताबें अपने लिए ख़रीदें, अपने घर वालों के लिए ख़रीदें, अपने बच्चों के लिए ख़रीदें। तो हर रोज़ ये किताब मेले में किताब की नुमाइश और उसको फ़रोख्त करने के अलावा मुख्तलिफ़ प्रोग्राम होंगे, तफरीही प्रोग्राम, फिर कल्चरल इवेंट्स, सक़ाफ़ती प्रोग्राम, फिर अदबी प्रोग्राम होंगे। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप इस मेले के अंदर आइए, किताबों को ख़रीदिए और इन तमाम प्रोग्रामों में भी हिस्सा लीजिए। प्रोग्राम जैसे कुल हिंद मुशायरा होगा, तमसीली मुशायरा होगा, बैत बाजी होगी और दास्तान गोई की एक नशिस्त होगी। आप जितने किस्म के प्रोग्राम दे सकते हैं अदबी, वो सारे प्रोग्राम इसके अंदर होंगे। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि रोज़ाना इस प्रोग्राम के अंदर भी आप शामिल रहिए। मैं सैयद अब्दुल बासित शकील, मैनेजिंग डायरेक्टर हुदा पब्लिकेशंस हैदराबाद। ये बड़ी खुशी की बात है कि 25वां कुल हिंद उर्दू किताब मेला जो कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान हुकूमत हिंद और दी वानिमबाड़ी एजुकेशनल सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम वानिमबाड़ी में 3 जनवरी तक 11 जनवरी मुनक़िद किया जा रहा है। इस मेले में मुल्क भर से नाशरीन शिरकत कर रहे हैं। एक फार्मूला है रीड एंड लीड, जो कौम पढ़ेगी वो कौम आगे बढ़ेगी। तो इस किताब मेले के ज़रिए से हम अपनी मुताले की प्यास को बुझा सकते हैं, अपनी इल्मी ज़रूरियात की तकमील कर सकते हैं। इस मेले में कुरान, तफासिर कुरान, अहादीस, फ़िक़्ह, तसव्वुफ़, तारीख़ के अलावा अदब, तनक़ीद, तंज़ मिज़ाह, ड्रामे, बच्चों की कहानियाँ, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और ख़वातीन के हुकूक़ जैसे मौज़ूआत पर बेशुमार किताबें दस्तयाब रहेंगी। नाज़रीन इकराम, मैं आपसे ख्वाहिश करता हूँ कि इस मेले से भरपूर फ़ायदा उठाएँ। यह रियासत तमिलनाडु में पहली मरतबा उर्दू किताबों का मेला हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि वानिमबाड़ी और अतराफ़ व अकनाफ़ के इलाक़ों से जो उर्दू के शायकीन और मुहिबान उर्दू है वो ज़रूर इस किताब मेले में शिरकत करेंगे। आप इस मेले से भरपूर फ़ायदा उठाइए और जौक़ दर जौक़ इस मेले में तशरीफ़ लाइए। रुकन राज्यसभा भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर लक्ष्मण ने कहा है कि रियासती सदर बीजेपी बंडी संजय रियासत भर का बस यात्रा के ज़रिए अहाता करेंगे ताकि असम्बली इंतखाबात में 90 नशिस्तों की जीत को यकीनी बनाया जा सके। नाज़रीन, इस अहम खबर के साथ आइए दीगर खबरों पर तफसीली नज़र डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। बीजेपी रुकन राज्यसभा डॉक्टर लक्ष्मण ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि सदर रियासती बीजेपी रुकन पार्लियामेंट 16 जनवरी से बस यात्रा का आगाज़ करते हुए आने वाले असम्बली इंतखाबात में पार्टी को कामयाबी से हमकिनार करने के लिए मुहिम चलाएंगे। उन्होंने बताया कि बीजेपी के 2 रोज़ा इजलास में फ़ैसला लिया गया है कि 2023 के असम्बली इंतखाबात में बीजेपी ने 90 नशिस्तों पर कामयाबी का निशाना मुकर्रर किया है, जिसमें ग्रेटर हैदराबाद के तमाम 20 नशिस्तें, जिसमें चार मीनार और याकूतपुरे की नशिस्त भी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि असम्बली और पार्लियामानी इंतखाबात के लिए सीनियर बीजेपी कायदीन, अराकीन पार्लियामेंट, अराकीन असम्बली की क़यादत में कमेटियाँ तश्कील दी जाएंगी। 119 స్థానాలకు రాష్ట్ర స్థాయిలోటువంటి సీనియర్ నాయకులు, అనుభవజ్ఞులు, పార్లమెంట్ సభ్యులు, శాసనసభ్యులు, వివిధ బాధ్యతలు ఉన్నటువంటి వాళ్ళను పాలకులుగా నియుక్తి చేసి ఆ యొక్క అసెంబ్లీని గెలిపించే బాధ్యతను పాలకులకు
అప్పగించడం జరిగింది. ఆ రకంగా ఈ 2 రోజుల సమావేశం 2023లో జరిగేటువంటి అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో, ఆ తర్వాత జరిగే పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో తెలంగాణ నుంచి పెద్ద సంఖ్యలో सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू जुमे के रोज़ ज़िले यादादरी के लिए हेलीकॉप्टर के जरिए रवाना हुई। वहां उनका रियासती गवर्नर डॉक्टर टी सौंदरराजन, रियासती वज़रा इंदिरा किरण रेड्डी और सत्यवती राठौर ने खैर मकदम किया। सदर जमहूरिया हिंद का यादादरी मंदिर में रेड कारपेट पर इस्तकबाल किया गया और उन्होंने काफ़ी देर तक मंदिर में दर्शन किए। पंडितों की जानिब से उनको तहनीत भी पेश की गई। इस मौके पर पुलिस की जानिब से भोनगिर, यादादरी और उसके अतराफ अकनाफ में सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे। यूथ कांग्रेस की जानिब से हैदराबाद शहर को ड्रग्स से पाक करने और नए साल के मौके पर 31 दिसंबर को 12 बजे रात तक शराब की दुकानें खुले रखने और बार एंड रेस्टोरेंट के अलावा पब्स को 1 बजे रात तक खुले रखने की इजाज़त देने के खिलाफ जुबली हिल्स से एक रैली निकालते हुए पुलिस और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई। यूथ कांग्रेस कायदीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो गांजा फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे। रियासती वज़रा हरीश राव और जी निरंजन रेड्डी ने सिद्दीपेट में मुनक़िदा क्रिकेट मैच में क्रिकेट खेलते हुए हर एक को हैरतज़दा कर दिया और काफ़ी देर तक दोनों वज़रा ने बैटिंग और बॉलिंग की। बाद वज़ीर फ़िनांस हरीश राव ने जीतने वाली टीम को ट्रॉफ़ी देने के बाद खिताब करते हुए बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव तमाम असम्बली हल्क़े जात में स्टेडियम क़ायम करने का मंसूबा रखते हैं और रियासत भर में खिलाड़ियों की हिम्मत अफजाई की जा रही है। रियासती वज़रा हरीश राव, अजय कुमार, जी निरंजन रेड्डी, प्रशांत रेड्डी और सदरनशीन आरटीसी गोवर्धन रेड्डी को आज उस वक्त बीजेपी कायदीन और कारकुनों की बरहमी का सामना करना पड़ा जब वो डुबाक में हुकूमत की जानिब से 4 करोड़ की लागत से तामीर किए जाने वाले बस स्टैंड का इफ्तिताह करने और 4 नए सुपर डिलक्स बसों को झंडी दिखाकर रवाना करने के लिए पहुंचे थे। इस मौके पर काफ़ी देर तक बीजेपी और बीआरएस कारकुनों के दरमियान नारेबाजी देखी गई। वज़ीर तालीम सविता इंदिरा रेड्डी ने जलपल्ली म्यूनसिपलिटी के कांग्रेस और बीजेपी से ताल्लुक़ रखने वाले 120 कायदीन और कारकुनों ने मुलाकात करते हुए बीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। सविता इंदिरा रेड्डी ने उनका पार्टी में खैर मकदम करते हुए पार्टी का खंडवा पहनाया और कहा कि मुल्क भर में बीआरएस पार्टी वो वाहिद सियासी जमात है जिसमें पार्टी कारकुनों का ख्याल रखते हुए 2 लाख की बीमा पॉलिसी की सहूलत फराहम की जा रही है।
حلقہ اسمبلی راجندر نگر کے بلدی ڈویژن شاستری پورم میں برقی مسائل کے پیش نظر مجلسی انچارج حلقہ راجندر نگر مرزا احمد بیگ اور شاستری پورم ڈویژن کارپوریٹر محمد مبین نے محکمہ برقی کے عہدیداران اے ڈی اور اے ای رتناکر راؤ کے ساتھ ایک اجلاس منعقد کیا اور برقی مسائل پر ان کی توجہ مبذول کروائی۔ مجلسی قائدین مرزا احمد بیگ اور محمد مبین نے برقی بلا خلل سربراہی کو یقینی بنانے کے علاوہ برقی کی فوری بحالی اور دیگر مسائل پر برقی عہدیداروں کو توجہ دلائی۔ اس موقع پر مجلسی قائدین کے ہمراہ سرگرم مجلسی کارکنان بھی موجود تھے۔ جلپلی میونسپلٹی کے مختلف وارڈز میں جاری ترقیاتی کاموں کا سیاسی قائدین اور متعلقہ کونسلر کی جانب سے معائنہ کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے کے تحت وارڈ نمبر 27 سعادت نگر میں جاری سی سی روڈ کے کاموں کا نمائندہ وائس چیئرمین سید یوسف پٹیل، جلپلی ٹی آر ایس پریزیڈنٹ اقبال بن خلیفہ اور مقامی مجلسی قائدین نے تفصیلی معائنہ کیا اور کاموں کی پیش رفت کا جائزہ بھی لیا۔ آج جمعے کا دن ہے، ماشاءاللہ جو سنا 27 وارڈ میں اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ہے۔ سبیتا اندرڈی میڈم اناگریشن کرے تھے یہ 3 مہینے پہلے۔ 1 کروڑ روپے کا بجٹ تھا یہ، جو محمود اعلان کے گھر کنے سے جو کلوٹ ہے، محمود اعلان کے گھر کنے سے لے کے احمد شامد کے چورستے تک 1.5 فٹ 2 فٹ کا جو سنا پیمپ ڈالا تھا، وہ پیمپ کا کام تو ہو گیا، اس میں تھوڑا جو سنا سی سی روڈوں کا تھا کام۔ انڈیپینڈنٹ سیاسی پارٹی قائد بی نریش کی جانب سے ورنگل میں منعقدہ جلسے میں ایپا بھکتوں کے خلاف کیے گئے قابل اعتراض ریمارکس پر کئی مقامات پر شدید احتجاج کیا گیا۔ بشیر باغ چوراہا روبرو کمشنر آفس پہاڑی شریف کے علاوہ دیگر مقامات پر بی جے پی، وشو ہندو پریشد و دیگر تنظیموں کے کارکنوں نے احتجاج کرتے ہوئے ان ریمارکس کی مذمت کی اور پولیس سے مطالبہ کیا کہ بی نریش کے خلاف پی ڈی ایکٹ کا نفاذ عمل میں لایا جائے۔ خبردار 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 بھارت ماتا کی جے، بھارت ماتا کی جے۔ అయ్యప్ప స్వామిపై అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేసిన హిందూ ధర్మానికి ఫుల్ వస్తుంది అన్న, మీరు కూడా జగన్ ఎంత ఫుల్ వస్తా అన్న మంచి వస్తుంది రైట్। जलसा ताज़ियत और एतराफ़ खिदमात हज़रत मौलाना मोहम्मद रहीमुद्दीन अंसारी मरहूम 1 जनवरी बरोज़ एतवार 9:30 बजे सुबह आते जामे इस्लामिया दारुल हैदराबाद वाक़े शिवरामपल्ली में मुनक़्क़िद होगा। जलसे की सदारत मौलाना मोहम्मद हुसामुद्दीन सानी आक़िल अल-मारूफ जाफ़र पाशा मोहतमिम जामे दारुल करेंगे, जबकि ये दोनों शहरों के मारूफ उलमाए किराम और सियासी क़ायदीन इस जलसे से खिताब भी करेंगे। इस इजलास में तस्किरा अंसारी का भी रस्म इजरा अमल में आएगा। मौलाना मोहम्मद हुसामुद्दीन सानी आक़िल अल-मारूफ जाफ़र पाशा मोहतमिम जामे दारुल और जुनैद अंसारी ने मीडिया कॉन्फ्रेंस में इस जलसे के बारे में तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। छोटा सा ये ख्याल है कि हम वो कामों की उनके सही मानों में उनके जो काम रहे हैं उसके बारे में कुछ कह तो नहीं सकते। हाँ, इतना है कि आज हम एतराफ़ात खिदमात जामिया इस्लामिया दारुल हैदराबाद की तरफ से मनाना चाहते हैं और उसी के लिए इंशाअल्लाह बरोज़ इतवार एक जलसा इंशाअल्लाह मुनक़्क़िद किया जा रहा है और इसमें इंशाअल्लाह हमारे बहुत से उलमाए किराम मुखातिब करेंगे, जिसमें से काबिल ज़िक्र
अगर हम नाम लेना शुरू करें तो बहुत ज़्यादा होगा। हमारे नकीब मिल्लत और हमारे जामिया निज़ामिया के असातिज़ा जनाब मुफ्ती खलील साहब मद्दुल आली और हमारे मौलाना शाह जमालुर रहमान साहब और मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब और दीगर उलमाए किराम इंशाअल्लाह इस जलसे से मुखातिब करेंगे। आप हजरात से खुसूसन हमारे दारुल के फारिगीन से, दारुल से मोहब्बत रखने वालों से मेरी गुजारिश है कि इस जलसे को कामयाब बनाएं और इस जलसे में शिरकत फरमा कर अपनी मोहब्बत का, अपने दारुल से मोहब्बत का, दारुल के ज़िम्मेदारों से मोहब्बत का सबूत दें। चुनाचे इसी को पेश नज़र रखते हुए मेरे वालिद माजी अलहाज मोहम्मद रहीमुद्दीन अंसारी साहब की जो खिदमत है, उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी दीन की इशाअत के लिए। फाउंडेशन ऑफ लर्निंग एंड न्यूमरेसी प्रोग्राम के तहत गवर्नमेंट हाई स्कूल गलबलगुड़ा में असातिज़ा की जानिब से एक नुमाइश का एहतमाम किया गया। टीचिंग लर्निंग मटेरियल मेले के तहत मुनक्किदा इस प्रोग्राम में बहादुरपुरा मंडल के 7 स्कूल्स ने हिस्सा लिया, जबकि के हरी नारायण डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल ने इस नुमाइश का इफ्तिताह अंजाम दिया। गवर्नमेंट हाई स्कूल गलबलगुड़ा में टीचिंग लर्निंग मटेरियल मेले का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। फाउंडेशन लर्निंग एंड न्यूमेरेसी प्रोग्राम के तहत इस नुमाइश में तलबा की मनफी सलाहियतों को उभारने के लिए असातिज़ा की जानिब से तख्लीकी नुमाइश का अहतमाम किया गया। बहादुरपुरा मंडल के तहत मुनक्किदा इस नुमाइश का इफ्तिताह डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस के हरी नारायण ने अंजाम दिया। बहादुरपुरा मंडल के 7 स्कूल्स के असातिज़ा ने इस नुमाइश में हिस्सा लिया, जबकि असातिज़ा की जानिब से मुख्तलिफ मॉडल्स पेश किए गए। इस मौके पर मखदूम हबीबुल्लाह सिद्दीकी, इंचार्ज कॉम्प्लेक्स सेक्शन गलबलगुड़ा, मोहम्मद अशफाक राशिद, एसोसिएट तेलंगाना टीचर्स यूनियन के अलावा टीचर दीपिका ने इस प्रोग्राम के बारे में तफसीलात बताई। इस मौके पर HM मोहम्मदी तैयबा के अलावा दीगर टीचर्स और तलबा और तालिबात की कसीर तादाद मौजूद थी। तेलंगाना भर में क्लस्टर लेवल पे TLM मेले का इनेकाद अमल में आ रहा है। ये टीचिंग लर्निंग मटेरियल है। तलबा को इक्तिसाब में सहूलत के लिए TLM का इस्तेमाल किया जाता है। तो गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल्स, उर्दू मीडियम, तेलुगु मीडियम, इंग्लिश मीडियम, तमाम मीडिया के स्कूल्स के TLM मेला मुख्तलिफ क्लस्टर पॉइंट्स पे या स्कूल कॉम्प्लेक्स लेवल पर जारी है। इसमें असातिज़ा बड़ी ही मेहनत से, जांफिशानी से चार्ट्स, मॉडल्स, वर्किंग मॉडल्स के ज़रिए अपनी तरफ से तैयार करदा मटेरियल्स को यहाँ पर लेकर आए हैं और उसकी नुमाइश जारी है। इस TLM का फ़ायदा यह होता है कि तलबा को सीखने में बड़ी आसानी होती है। जो भी चीज़ जो AV एड्स होते हैं ऑडियो विजुअल, उससे तलबा को सीखने में सहूलत होती है। जो स्कूल कॉम्प्लेक्स है बहादुरपुरा 1 का, आज यहाँ पर TLM का जो इनाग्रेशन का प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। ये तमाम गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल जो मेरे गवर्नमेंट हाई स्कूल गलबलगुड़े से ताल्लुक़ रखते हैं, वो 7 स्कूल्स के यहाँ पर तमाम असातिज़ा ये टीचिंग लर्निंग मटेरियल तैयार करके अपने स्कूल का यहाँ बच्चों के लिए मुशाहदे के लिए पेश किया है और बेहतरीन ये काम हो रहा है। ये हुकूमत आंध्र प्रदेश की तरफ, हुकूमत तेलंगाना की तरफ से, महकमे तालीम की तरफ से ये FLN प्रोग्राम जो शुरू किया गया है अगस्त से, वो प्रोग्राम के तहत ये TLM और तमाम ट्रेनिंग वगैरह असातिज़ा के लिए मुनक़िद हो रही है। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल, मंडल लेवल और फिर क्लस्टर लेवल पर ये प्रोग्राम मुनक़िद हो रहा है और हर माह ये इसकी रिव्यू मीटिंग्स मंडल लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है। इसको प्रोग्राम को बहुत सक्सेसफुल करने के लिए टैंजरीन ऐप एक मुतारिफ़ किया गया हुकूमत की तरफ से। वो टैंजरीन ऐप में जब मॉनिटरिंग ऑफिसर स्कूल विज़िट करते हैं, वो तमाम स्कूल के और स्कूल के टीचर के जो लेसन प्लान है, टीचिंग मटेरियल। రూబీ ఛానల్ ప్రేక్షకులకు నమస్కారం। మన తెలంగాణ ప్రభుత్వం నిర్వహిస్తున్న తొలిమెట్టు కార్యక్రమంలో భాగంగా ఈరోజు మన గల్బల్గూడ కాంప్లెక్స్లో TLM మేళా నిర్వహించడం జరిగింది। ఇందులో మొత్తం మన ప్రభుత్వ పాఠశాలలు పాల్గొనడం జరిగింది। మొత్తం 8 పాఠశాలలు పాల్గొనడం జరిగింది। ఇందులో
దీని ఒక ముఖ్య ఉద్దేశం ఏమనగా పిల్లలు చదవడం రాయడం కంటే ఉపాధ్యాయులు టీఎల్ఎం ద్వారా లెసన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం ద్వారా పిల్లలు తొందరగా అవగాహన చేసుకోవడానికి మరియు ఎక్కువ కాలం గుర్తుంచుకోవడం జరుగుతుంది. దీని ద్వారా పిల్లలకు తొందరగా అర్థమవ్వడం జరుగుతుంది. ఈ బహదూర్పుర మండల్లో మొత్తం 4 కాంప్లెక్స్లు ఉన్నాయి. ఇది గల్బల్గూడ కాంప్లెక్స్, రెండో కాంప్లెక్స్ శాలిబండ కాంప్లెక్స్, హుసేనీ అలం కాంప్లెక్స్. पुराने शहर के इलाके शमशीरगंज में 1 जनवरी को वेस्टर्न न्यूरो हॉस्पिटल कायम किया जा रहा है, जिसका इफ्तिताह कुल हिंद में सैयदुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली हल्क़े बहादुरपुरा मोहम्मद मुअज़्ज़म खान करेंगे. मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी इस तकरीब की सरपरस्ती करेंगे. मुमताज़ कंसल्टेंट न्यूरो सर्जन डॉक्टर जलील करमानी ने मीडिया प्लस ऑडिटोरियम में मुनक़्क़िदा मीडिया कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस हॉस्पिटल में मरीज़ों की बाज़ आबादकारी यानी रिहैबिलिटेशन की सहूलत भी फराहम की गई है. डॉक्टर जलील करमानी ने इंकशाफ किया कि रातों के जागने की वजह से दिमाग पर फालिज के हमले यानी ब्रेन स्ट्रोक हो रहे हैं. ब्लड प्रेशर, ज़ियाबतीस, चिड़चिड़ापन दिमागी अमराज की बुनियाद है. उन्होंने बताया कि फालिज से मुतासरा मरीज़ अगर फौरी रुजू होते हैं तब मुतासरा हिस्से से खून निकाल दिया जाता है और खून का दौरान बहाल किया जाता है. डॉक्टर मुस्तफ़ा फैसल ने इस मौके पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के ज़रिए मालूमात भी फराहम की. जी चलिए. बहुत दिन से एक फिक्र थी हमारे को कि ओल्ड सिटी में एक न्यूरो हॉस्पिटल क्यों ना हो, और इस न्यूरो प्रॉब्लम्स के लिए, छोटा प्रॉब्लम के लिए भी नए शहर को जो है लोगों को जाना पड़ता था. तो बहुत दिनों के बाद फिक्रें हुई और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ये नया साल जनवरी 1 से जो है एक दवाखाना, एक छोटा एक स्टेप है, 20-25 बेड का जो है न्यूरो डेडिकेटेड हॉस्पिटल हमने क़ायम किया है, जिसको डॉक्टर मुस्तफ़ा फैसल साहब जो है आपकी बहुत कोशिशों से आज वो अंजाम पाया. तो इस हॉस्पिटल के अंदर जो न्यूरो प्रॉब्लम्स होंगे, इमरजेंसी है या रूटीन प्रॉब्लम्स है, इसके लिए पूरे जो है इलाज के लिए जो चीज़ें चाहिए वो सारी चीज़ें जो है वहाँ मुहैया की जा रही है, ताकि इलाज जल्दी भी हो सके और क़रीब के दवाखाने में अपने पुराने शहर के अंदर जो है ये इलाज हो सके. अल्हम्दुलिल्लाह ये जनवरी 1 2023 से जो है ये दवाखाना वेस्टर्न न्यूरो हॉस्पिटल नाम से शमशीरगंज में KM मुकीद साहब के दवाखाने के बाजू जो है ये शुरू हो रहा है. आप हजरात के लिए जो है हमें तो बहुत खुशी हो रही कि अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज़ हम जो है फ़ायदे के लिए, आवाम के फ़ायदे के लिए जो है एक चीज़ हम कायम कर सकें. और आप हजरात से भी गुजारिश है कि अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ी हॉस्पिटल के न्यूरो प्रॉब्लम्स के लिए, तो ये अपने करीब में आपके लिए ये दवाखाना मौजूद है. ये क्या फ्री रहेगा सब, ये नहीं कुछ चार्जेस रहेंगे? नहीं, इसमें जो है नॉमिनल चार्जेस रहेंगे. हम फ्री भी नहीं रखे या मैं कॉर्पोरेट चार्जेस नहीं रखे, ये नॉमिनल चार्जेस में मिनिमम जितना सहूलत से मरीज़ जो है अदा कर सके वो हिसाब से हमने बनाया. अच्छी बात बताएं, जो मोबाइल फ़ोन है उसके अंदर बहुत रेडिएशन होता, और जो सर के करीब रख के या उसको घूर के देखने से जो है उसके असरात आदमी के दिमाग पे पड़ते, और ख़ास तौर पे छोटे बच्चों पे इसका बहुत प्रॉब्लम होता. कई चीज़ें हम उनके अंदर नोटिस करते, जो बच्चे ज़्यादा फ़ोन देखने लगते, एक तो पढ़ाई उनकी नहीं हो सकती, पढ़ाई में कंसंट्रेशन नहीं होता, और याद रहे तो भूल जाते जल्दी, और फिर तीसरी चीज़ गुस्से में आते. आप देखेंगे जो बच्चे बार बार फ़ोन लेके बैठते, जल्दी गुस्सा आता उनको, अपने आप पे कंट्रोल नहीं रहता. और यहाँ तक हम ये हद तक देखें कि छोटे बच्चे माँ बाप को जवाब देने लग गए. डिसोबीडियंस जो है पूरा ब्रेन का जो आदमी पर जो क़ुव्वत है, कंट्रोल रहता अपना, वो चले जाता. तो माँ बाप के लिए ख़ास हिदायत है कि अपने बच्चों को फ़ोन न दें, और मुझे ज़्यादा फ़ोन न लें, ज़रूरत के हिसाब से बात करें फिर रख दें. पटनचरू के इलाके रुद्रारम के करीब वाक़े परिवार ढाबे से मुतसल तकरीबन 7 से 8 अफराद ने अपने आप को पुलिस मुलाजिमीन ज़ाहिर करते हुए बकरों से लदी एक ट्रक लेकर राह फरार इख्तियार की. इस सिलसिले में मुताल्लिक़ा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई. शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने शेख फाजिल और दीगर 7 अफराद को हिरासत में लिया. वाज़ेह है कि इस ट्रक में तकरीबन 246 बकरे थे. ताहम पुलिस ने
انہیں گرفتار کرنے کے بعد ان کے قبضے سے 82 بکرے اور 5 لاکھ روپے نقد رقم کے علاوہ دیگر اشیاء برآمد کی۔ ڈی ایس پی پٹن چیرو بھیم ریڈی نے اس کیس کے سلسلے میں میڈیا کو تفصیل بتائی۔ పటంచెరు సబ్ డివిజన్ సంగారెడ్డి జిల్లాలో పటంచెరు పిఎస్లోన మొన్న 26/12 నాడు రాత్రి 10:30 గంటల 11 గంటల సమయంలోన ఒక 246 గొర్రెలు ఒక దొంగలు వచ్చి దొంగిలించుకుపోయిందని చెప్పి మనకు 27 నాడు 11 గంటలకు వచ్చి మన ఇన్స్పెక్టర్ పటంచెరు వేణుగోపాల్ రెడ్డి గారికి ఒక ఫిర్యాదు రావడం జరిగింది। దానిపైన ఇమ్మీడియట్గా ఒక కేసు రిజిస్టర్ చేయడం అయింది। క్రైమ్ నెంబర్ 827/22 అండర్ సెక్షన్ 395 అండ్ 363 అండ్ రెడ్ విత్ 34 ఐపీసీ కింద ఒక కేసు రిజిస్టర్ చేయడం జరిగింది। ఆ దాంట్లో అన్ని సాక్ష్యాలను విచారించి అసలు ఏం జరిగిందని చెప్పి చూడగా అయితే ఈ 246 మేకలు ఏదైతే ఉన్నాయో దొంగతనమైన మేకలు వాటిని ట్రేస్ చేయడం జరిగింది। ముఖ్యంగా ఇందులో ఈ షేక్ ఫాజిల్ అండ్ షేక్ అమ్మన్ ఫాజిల్ అండ్ షేక్ నదీం రెహమాన్ అండ్ మధుసూదన్ అని ఇక్కడ వీళ్ళందరూ కూడా మహారాష్ట్రకు చెందిన వాళ్ళు, ఎక్సెప్ట్ మధుసూదన్ వచ్చి జియాగూడకు చెందిన వాళ్ళకు, ప్లస్ ఈ అసీన్ నవాబుకు వీళ్ళందరూ కూడా ఈ మేకల వ్యాపారం కింద లావాదేవీల ఉన్నాయి। ఆ లావాదేవీల సందర్భంగా ఈ నలుగురు ఎవరైతే నేరస్తులు నలుగురు ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా హసీన్ నవాబ్ అంటే ఇతను వచ్చి రాజస్థాన్ చెందిన అతనికి 13 లక్షల రూపాయలు ఇవ్వడం జరిగింది। ఆ 13 లక్షల రూపాయల విషయంలోనే వీళ్ళు చాలాసార్లు అడిగితే ఈయన షేక్ నవాబ్ అయితే ఎవరున్నారో सीसीएस पुलिस से वाबस्ता वेस्ट जोन जोनल टीम ने रहजनी की वारदातों में मुलविस एक मुलजिम को हिरासत में लिया। तफसीलात के मुताबिक 24 साला रहजन मीर इनायत अली उर्फ अरबाज साकिन गोलकुंडा को हिरासत में लिया गया, जिसने 2 सेल फोन्स उड़ाने के सिलसिले में एतराफ़ कर लिया। मज़कूरा वारदात बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन हदूद में पेश आई थी। मुलजिम तकरीबन 4 केसेस में मुलविस पाया गया है, जिनमें बंजारा हिल्स के अलावा गोलकुंडा पुलिस स्टेशन, हुमायूंनगर पुलिस स्टेशन और लंगर हाउस पुलिस स्टेशन हदूद में इसने वारदातें अंजाम दी हैं। हुमायूंनगर पुलिस ने 2 अफराद को हिरासत में लिया है जो मुतअद्दिद रहजनी की वारदातों में मुलव्विस पाए गए हैं। पुलिस के मुताबिक दोनों शहरों के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन हदूद में मुलजिमीन ने रहजनी की वारदातें अंजाम दी हैं। हिरासत में लिए गए अफराद में 28 साला मोहम्मद मुजफ्फर मुतवत्तिन गुलबर्गा कर्नाटक के अलावा 28 साला सैयद गयास साकिन शालीबंडा शामिल हैं। इनके खिलाफ मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन हदूद में की गई वारदातों के सिलसिले में केसेस भी दर्ज हैं। पुलिस ने इनके कब्जे से तकरीबन 5 लाख रुपए मालियती 21 मोबाइल फ़ोन्स और 3 टू व्हीलर्स बरामद किए। आज तारीख 30 दिसंबर पे हुमायूंनगर पुलिस इंस्पेक्टर नारायण रेड्डी, डिटेक्टिव इंस्पेक्टर कोटेश्वरराव एंड एसआई अहमद पाशा के लीडरशिप में 2 चोरों को अरेस्ट करे। वो लोगों का नाम है मोहम्मद मुजफ्फर गुलबर्गा का है और सैयद गयास शालीबंडा का। ये लोगों के पोजीशन से 21 सेल फोन्स, 3 मोटरसाइकिल, तीनों को 3 भी चोरी करे। सो मोटरसाइकिल है, वो मोटरसाइकिल के ऊपर ये लोग ये क्राइम कर रहे हैं। और ये 2 नाइफ्स भी, ये तो एक हंटिंग सिकल जैसा है और एक डैगर भी है। ये लोगों के पोजीशन से ये रिकवर करे। इसमें मोहम्मद मुजफ्फर अब तक पूरा 15 केसेस में इन्वॉल्व है 2019 से, और जो गयास अब तक 2 केसेस में इन्वॉल्व है। फिर ये दोनों मिलके लास्ट 1 महीने में 8 केसा करे। ये सेलफोन स्नैचिंग केस, सेलफोन चोरी केस,
ये करे, ये 3 मोटरसाइकिल को भी ये लोग चोरी करे। सो मोटरसाइकिल से ये लोगों के पोजीशन से ये नाइफ्स, 21 सेल फोन्स और 3 मोटरसाइकिल भी रिकवर करे। आज ये लोगों का हाथ में एक बैग था, ये बैग में 21 सेल फोन्स भी थे। आज ये लोग थोड़ा डेंजरस भी है, क्यों बोले तो ये लोग कोई सेल फोन चोरी करने का टाइम पे अगर वो लोग जो सेल फोन का ओनर रेसिस्ट करे तो लोगों को चाकू भी बताते वो लोग, होना बोले तो अगर ज़रूरत पड़े तो अटैक भी करते उसको। उसके वो वजह के लिए ये यूज़ कर रहे लोग, ये इसको भी अरेस्ट करे, ये सीज करे। सो है बहुत अच्छा केस है। इसमें क्राइम टीम करुणाकर गौड, श्रीनिवास, रमेश बाबू, साई किरण और HG होमगार्ड निरंजन गौड़ भी इसमें शामिल है। ये टीम में इसको पकड़े सो टीम में। और ये लोगों को PD एक्ट में भी अप्लीकेबल होने का चांसेस है। ये लोगों को हम PD एक्ट एडवाइजरी कमेटी से, PD एक्ट जो कमेटी से इसका एडवाइज लेके इसको PD एक्ट भी इनिशिएट करके ये लोग ये 8 केसेस में अब तक नहीं पकड़ा गया। अब तक ये 8 केसेस में फर्स्ट केस 8 केसेस में वांटेड है। आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर। रियासी सदर बीजेपी 16 जनवरी से रियासत के मुख्तलिफ अजला में करेंगे बस यात्रा। 90 नशिस्तों पर बीजेपी की कामयाबी होगी, बीजेपी रुकने पार्लिमान ने किया दावा। हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ नाजेबा रिमार्क करने वाले दलित लीडर के खिलाफ कई मुकामात पर एहतजाज, PD एक्ट आयद करने का किया गया मुतालबा। 25वें कुल हिंद किताब मेले का वानम्बाड़ी तमिलनाडु में 3 तक 11 जनवरी होगा इनेकाद। उर्दू दोस्त अवाम और तुलबा और तालिबात से शिरकत की अपील। दोनों शहरों के कई पुलिस स्टेशन को मतलूब 2 रहजन जेर हिरासत। कई केसेस दर्ज होने का इंकशाफ, 21 मोबाइल फोन्स किए गए बरामद। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।